All right, everybody. So this is our lesson number 3. तो ये हमारा लेसन नंबर 3 है और स्टैटिस्टिक्स पार्ट 3 हम इसको कह देंगे स्टैटिस्टिक्स पार्ट 3. बेटा टुडे आफ्टर डिस्कसिंग डिस्क्रीट डाटा एंड द ग्रुप कंटीन्यूअस डाटा. ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स and we also have to know that what diagrams are included in Cambridge exam. So let me write here statistical diagrams according to the syllabus. ठीक है. In syllabus beta we have pie chart, we have pictogram, we have histogram, we have we have cumulative frequency diagrams. We have cumulative frequency diagrams. Okay. Then after that we have a 5-phase bar chart, and the sixth one is scatter diagram. तो ये बस मैं वन गो में एक साथ ही पढ़ाऊंगा, फिर इसके क्वेश्चंस कराता हूँ आपको. ठीक है. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी और नॉट? Yes, sir. सो लेट्स सी द सिलेबस नाउ. कि कोई चीज मिस ना हो. सिलेबस को देखना जरूरी होता है, तो साथ ही जरा सिलेबस को देख लेते हैं. दिस इज द सिलेबस. सी, इट्स अ बार चार्ट, पाई चार्ट, पिक्टोग्राम एंड स्टेम एंड लीफ डायग्राम इज इंक्लूडेड इन आईजीसीएसई ओनली. ओ लेवल्स का नहीं है, क्योंकि ओ लेवल्स के डायग्राम्स में स्टेम एंड लीफ डायग्राम नहीं है. ठीक है. ओ लेवल्स वालों का स्टेम एंड लीफ डायग्राम नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो सबके लिए आसान है. आना चाहिए वैसे सबको. जरूरी नहीं है कि बात चीजें सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी जाए. Stem and leaf diagram is very much helpful, so I will teach stem and leaf diagram as well. 7. Stem and leaf diagram. And this is only for IGCSE students. ठीक है. Rest, all of them, they are the part of all of you. Okay. So today we are going to start one by one. It's a pie chart. But a pie chart is representing data. Representing data in a form of circle. In a form of circle. We know that the sector angle formula is part divided by total मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. ये नोट्स हैं तो नोट्स पहले बना लें, फिर बाद में हम लोग करेंगे. वी नो दैट के पाई चार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. वन लाइन विल बी ड्रॉन इन द पेपर. ठीक है. तो इन एग्जामिनर will give you one line already marked, and second, draw rest of the angles by protractor protractor starting from the largest. Starting from the largest angle. आपके पास जो लार्जेस्ट एंगल होगा आपने वहीं से स्टार्ट लेना है. एग्जाम्पल के तौर पे एक डाटा यहाँ पे बनाते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल there is a data and these are few colors. Like for example red, yellow, and green. There are 3 colors and their frequency is, let's say, 10, 15 and 5. Examiner is asking you to represent this data in a form of a pie chart.
in a form of pie chart. So one angle will be drawn automatically in front of you. ये एक एंगल बना होगा, तो you will be finding, for example, red sector angle. Red sector angle. So you got the idea that the total is 30. Total is 30. So red would be 10 by 30 multiplied by 360. So 0, 0 cancel. So 360 divided by 3, which is equals to 120 degree. This is for the red. What about yellow? Yellow angle would be 15 by 30 multiplied by 360. So 15 by 30 is 1 over 2. So 360 divided by 1, 2 is 180 degree is the yellow. So let me write here yellow as well. Okay, now the last one is green. Green is 5 by 30 multiplied by 360. 5 by 30 is 1 over 6. So 360 divided by 6 is how much? It would be 60 degree. So now we got the idea that we have these angles available. So I told you that you have to start from the largest angle and start from the right side. Right side से अपने start करना. I can see that this complete line will give me 180 degrees angle. This is 180 degree, and 180 degree is the portion for the yellow. ये yellow का portion है, and this is a 60 degree. Okay. Then after that I'm going to draw 120. So it's okay that if you draw 60 on the left side, आप जब जैसे ही लेफ्ट साइड पे 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है ये बन जाएगा. सो लेट मी जस्ट मेक हियर 120. तो मैं 120 डिग्री पे रूलर को रोटेट किया हुआ है. तो लेट्स से कि ये आपके पास है 180. ज़ीरो हो गया, तो अब यहाँ से हमें 30 डिग्री खाली रोटेट करना है. 60 डिग्री. सो ये आ गया बेटा. ये देखो बेटा, ये मैं यहाँ पे रूलर पे बना रहा हूँ, तो प्लीज पे अटेंशन कि ये हमें कैसे बनाना है. जैसे एग्जांपल के तौर पे, यू नो दिस ऑलरेडी दैट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन will make a will make a 90 degrees angle. Understood तैमूर? तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है. जी सर। तो लेट्स सपोज कि ये आपका जो 60 डिग्री है वो कुछ यहाँ पे आएगा. लेट्स सपोज दैट. ओके, क्योंकि प्रोटेक्टर यूज करना है हमें यहाँ पे, ठीक है. So let's say that this part is 60 degree. So 60 degree is representing green, and this lower portion is 120 degree, and it is representing a red. ठीक है बेटा. So start from the largest. आपने बड़े वाला एंगल पहले बनाना है, ठीक है. Understood everybody or not? Yes or no? यस तो सर। ये एक बार पे बता सकते हैं? बेटा देखें, पाई चार्ट के लिए यू नो दिस दैट यू शुड हैव अ फॉर्मूला. इन द फॉर्मूला इज, हमने पीछे लिखा, part divided by total multiply by 360, because we have to split the circle into 360 pieces, and we have to split according to the need of the question. You can see one thing that we in this example I took three angles, which is red, yellow, and green. I say that there are 10 red balls, 15 yellow balls, and 5 green balls. Represent this data in a form of a pie chart. So red angle would be, red is 10, total are 30. So 10 by 30 multiplied by 360, it's 120. Then yellow, 15 by 30 multiplied by 360, it's 180. Then green, 5 by 30 multiplied by 360, it's 60 degrees. I got three angles here. Agree? The first angle which should be marked is 180, which is because it's the greater. So then this angle is 180, obviously. Okay? A horizontal line or a vertical line is 180 degree. So we got the idea that, okay, this region is representing yellow color. This region is representing 120 degrees. This is representing red, and this is representing 60. And with the help of protector, it is very easy for you to understand why statistical data, it helps us. Why? There is a reason. Because for example, you can see that this pie chart has this portion yellow color. ये portion आपके पास yellow color है. Now can I say that half the data is yellow? Can I say that or not? जी सर। Can I say that the model color is yellow? जी। Can I say that, beta, that the model color is yellow and this portion is what? This portion is red. Agree? ये Okay. Which color is the least in in this diagram? ग्रीन।
एग्जामिनर कैन आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस। एग्जामिनर आपसे कुछ मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, तो आपको रेडी रहना है इसके लिए, ठीक है। एग्जामिनर कैन आस्क यू दैट विच कलर इज द लीस्ट कलर इन दिस डायग्राम एंड इट्स ग्रीन, विच कलर इज द मोस्ट रिपीटेड कलर और मॉडल कलर ऑफ द डायग्राम, इट्स येलो। Understood? So that's how we draw a pie chart. And pie chart, it really helps us to identify the statistical data, and so that you can take a decision on the basis of that. Understood? Then we can represent the same data with the help of a bar chart. So what a bar chart is, we can represent the same data in a form of a bar chart. Bar chart is like vertical. It can be a vertical bar chart, and it can be a horizontal, and it can be a horizontal bar chart. ये दोनों पढ़ाता हूँ। कैम्ब्रिज में मैंने कभी हॉरिजॉन्टल देखा नहीं, लेकिन पढ़ा देता हूँ क्योंकि यू नेवर नो कि एग्जामिनर क्या दे दे, ठीक है। सो यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट कलर्स, which is, how many colors do we have in here? We have in this diagram we have 3 colors. हमारे पास 3 colors मौजूद है, ठीक है। So first one is red, दूसरा जो है हमारे पास था green और yellow, and their frequencies जो थी हमारे पास थी 5, 5, 10, 15। हमारे पास द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई हैड वाज 15, ठीक है। तो मैं 5 5 का गैप ले लूंगा और दो दो पिलर छोड़ दूंगा, और दो दो गैप्स, 5, 10 and 15. So the first color I had is red color, and red is 10. So let me write here red. मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ red. So यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड कर, red is 10, तो जहाँ पे मैंने red लिखा है तो उसी साइज का पिलर आपने बना दिया, ठीक है। और ये आपने बना दिया 10 के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बदान समझ आ रही है बेटा? Yes, sir. Very easy. Red is 15 or 10. अच्छा, according to the table yellow is 15, तो yellow is 15। तो बेटा येलो जो है वो 15 है, तो इक्वल गैप्स लेने होते हैं, तो मैं येलो को ले लेता हूँ यहाँ पे 15। यमुना, कैन यू हियर मी बेटा? Yes, sir. ओके, एंड द लास्ट वन इज ग्रीन, एंड ग्रीन इज 5। ग्रीन कितना था बेटा? 5 था, तो ये हो गया बेटा ग्रीन। दिस इज ग्रीन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रीन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ येलो। So you can see that in this diagram as well, the more repeated data is what? It is yellow. Yellow is a repeated thing, ठीक है? And the least color we have here is it's a green color. Now, what is a horizontal bar chart? A bar chart. यहाँ पे frequency होती है, ठीक है? Frequency. अब frequency में ये होता है कि ये flipped होता है, ठीक है? जैसे कि colors आपके पास होंगे y axis पे, colors will be on the y axis and the frequency on x axis. आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको एक्स एक्सेस पे देखने को मिलेगी, ठीक है। सो यू कैन सी वन थिंग दैट फ्रीक्वेंसी इट इज 5, 10 and 15 already. We had 3 colors, like let's suppose this line is representing red, this line will represent green, and this line will represent yellow. तो अब देखिए मैं यहाँ पे कलर्स बनाता हूँ according to the table above. Red was 10. So red was 10, so I'm going to draw a pillar till 10 like this. This is red. Green was 5. Am I right or not? Yes. Yeah, green is 5. So let me draw the pillar till 5 now. And the last one is yellow, and yellow is till 15. So this is horizontal, green and red. It shows us the same thing. ये भी हमें सेम चीज बता रहा है, ठीक है। जो कि वर्टिकल बता रहा था और ये हॉरिजॉन्टल बता रहा है, बाकी इसमें कोई ऐसे डिफरेंस नहीं है। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा इन अ फॉर्म ऑफ अ पाई चार्ट। पाई चार्ट में हम ये सेम डाटा को सर्कल में रिप्रेजेंट कर देते हैं, और क्या नाम है, बार चार्ट में हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ
पिलर, एक पिलर की फॉर्म में हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर भी हम क्वेश्चंस जो हैं अभी थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। द थर्ड डायग्राम वी हैव इज स्टेम एंड लीफ डायग्राम, नहीं स्टेम एंड लीफ नहीं, पिक्टोग्राम, पिक्टोग्राम। So pictogram is what? It is representing data, representing data in the form of, in the form of pictures, representing data in a form of pictures. That is what a pictogram is, ठीक है। So remember one thing, that examiner can give you a pictogram in different direction. Like for example, he can say it to you that for example there are three colors, and there are three colors like this, okay, and the three colors are the same. I can write here colors and its frequency. So colors are red, green, and yellow. According to this, there will be a key here. And key is like, for example, this circle represents, it will be written, represent five colors. Five color. So like for example, five balls. Five balls लिख देता हूँ, ठीक है। According to the question, I had आई हैड द टेबल, और मेरे पास एक टेबल था, और टेबल के अंदर आई हैड थ्री कलर्स, ठीक है बेटा। रेड कितने थे बेटा, याद करो जरा, बताओ मुझे। रेड, ग्रीन, येलो। थोड़ा इजी इजी पढ़ो ताकि जरा समझ आ जाए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द टेबल हमारे पास जो रेड थे वो 10 है, ग्रीन 5 और येलो 15। रेड आर 10, ग्रीन आर 5 एंड येलो आर 15। सो इट मीन्स दैट फॉर रेड आई एम सपोज टू ड्रॉ two circles. So I'm going to draw two circles because one circle is representing five values. So 5 plus 5 is 10. And the green is representing 1, 5. So it's 5 now. And yellow is 15. So I'm going to draw three circles. Understood everybody or not? Yes or no? यस सर। Understood बच्चा, सर सबको ये समझ? की तो हर तरह से गिवन हो सकती है ना, कि लाइक फॉर एग्जांपल वन बॉक्स रिप्रेजेंट Now, 10 बॉल। yes, yes. तो याद रखें कि की can be changed इन एग्जाम के अंदर चेंज हो सकती है। आपने बस सिर्फ की को देखना है और उसी के मुताबिक यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। अंडरस्टूड? उसी के मुताबिक आपने डायग्राम को बनाना है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी और नॉट? यस और नो? सर, यस। जी बेटा। सर अगर मसलन 7 हो तो एक बॉल बनाएंगे और दूसरा पर हाफ हम फिर बनाएंगे। उसको उसको फिर आधा आधा कर देंगे ना, उसको फिर हम स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। आपने खुद ही दिमाग लगाना है कि अगर फॉर एग्जांपल अच्छा देखो अच्छा। यहाँ पे तो मैंने 5 लिए ना, तो कैमरेज में आपको सर्कल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो 4 आएगा, ठीक है। तो हम इस सर्कल को 4 पीसेस में काट सकते हैं, ठीक है, 90 डिग्री करके, जी 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 ठीक है। जी। और उस तरह का क्वेश्चन मैंने उस दिन एक पास पेपर में किया भी था, अभी थोड़ी देर में करवाता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी, हमने पढ़ लिया है बेटा, पाई चार्ट पढ़ लिया, पिक्टोग्राम पढ़ लिया, पाई चार्ट पढ़ लिया, पिक्टोग्राम पढ़ लिया और बार चार्ट पढ़ लिया। अब हम पढ़ लेते हैं स्टेम एंड लीफ डायग्राम। Stem and leaf diagram, it is in the syllabus for IGCSE, but I will recommend all my students to study this stem and leaf diagram. It's very easy, ठीक है। So for example, there is a score, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, 11, 12, 13, 11, 14, 11, 12, 22, 25, 27, 22, 34, 36, 42। मैंने आपके सामने कुछ नंबर्स लिख दिए। अब यहाँ पे भी की होगा, एंड की रिप्रेजेंट्स 1/2 रिप्रेजेंट्स 12। अब करते क्या है बेटा स्टेम एंड लीफ डायग्राम में, यू कैन सी दैट यू हैव 11, यू हैव 12, you have 22 and you have 36 and 42। So beta यहाँ पे like for example you can see one thing that Vadan, this one is and this two are two different thingies। So this is what, this is your stem, ये आपका stem होता है और ये आपका leaf होता है, ठीक है बेटा। ओ लेवल्स वाले भी सीख लो बेटा, बहुत आसान चीज है और आना चाहिए लाइफ में। तो हमारे पास स्टेम में 1 आता है, 2 आता है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। चलें 1 1 वाले डिजिट्स देख लो बेटा।
वन वन वाले डिजिट देख लो, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ओके, सबसे छोटा 11 है, तो राइट 11। वन वन वन, तीन 11 है तो तीन दफा मैंने वन लिखा है। देर इज अ वन 12, दो 12 है तो दो दफा टू लिख देंगे। देर इज वन थ्री, तो एक दफा थ्री लिख देंगे और एक दफा फोर लिख देंगे। तो यमुना, एक तो डाटा असेंडिंग ऑर्डर में सेट भी हो गया है और हमें बार बार वन, पहला वन लिखना नहीं पड़ा, ठीक है। जी सर। ओके, अब 20 में आ जाओ। तो 20 में बेटा आपके पास कितने डिजिट्स हैं यमुना, जरा गौर करके बताएं। 22 है, 25 है, 27 है, 22 है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है बेटा? 2। 22, तो हम लिखेंगे टू। दो दफा 22 है तो दो दफा टू, एक दफा फाइव, 25, एक हो गया 7, ठीक है जी। ओके, वदान 30s में देखें बेटा, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर 30s में? सर देर आर 2 digits। तो हम लिखेंगे 3436, थ्री हमने पहले ही लिखा हुआ है। ओके, एंड द लास्ट वन इज 42, दिस इज 42। डन। सो व्हाट हैपेंड हियर लालूना, दैट आफ्टर arranging the data in stem and leaf diagram, it gave me an idea that my data is arranged. My data is arranged, I can interpret the data, मैं data को interpret कर सकूंगा, and you can have to, IGCSE students, you have to just interpret the data as well. Examiner can ask you that what is the range of the data. What is the range of the data? Range is what? Highest value minus lowest value. And Vadan, I can see that very clearly that the last digit is my highest and the first digit is my lowest. Agree? But the trick is यस that सर। the highest value is the highest value is 42, not 2, okay? And my lowest value is 11, not 1. ये ना हो कि आप वहां पे 2 minus 1 कर दो, ठीक है? You have to see that what is the number before that. So it's 42 minus 11. So 42 minus 11 is 31. 31 is the range. Examiner can ask you which one is the mode. You can see that beta which number is repeating. कौन सा नंबर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है? 11 रिपीट हो रहा है 3 दफा, 12 2 दफा है, 22 2 दफा है, बस। तो इसका मतलब है 11 इज व्हाट? 11 इज मोड। यमुना, मीडियन क्या होता है बेटा? मिडिल वैल्यू होती है कि नहीं? यस सर। पहले डाटा को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 इवन नंबर, ऑड नंबर? इवन। वेरी गुड, इवन नंबर 14। तो n इज इक्वल टू 14, सो 14 डिवाइडेड बाय 2 इज द सेवेंथ वैल्यू। सेवेंथ वैल्यू। सो रामीन, मीडियन हमारे पास आएगा 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, यस और नो? 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, अग्री? सो व्हाट इज माय सेवेंथ एंड एट वैल्यू? सेवेंथ और एट वैल्यू मेरा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू मेरा बेटा ये वाला है और एट वैल्यू मेरा ये वाला है, एग्री और नॉट? सो बेटा सेवेंथ वैल्यू इज 14, ये 4 नहीं है, इट्स 14। एंड एट वैल्यू इज 22 डिवाइडेड बाय 2। 14 प्लस 22 इज हाउ मच? 36। एंड 36 डिवाइडेड बाय 2 इज 18 इज द मीडियन। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड बेटा? इसी तरह एग्जामिनर कैन आस्क यू अबाउट द मीन एज वेल। मीन क्या करना है? सब नंबर्स को ऐड करना है और डिवाइड बाय 14 कर देना है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई इतना मुश्किल चीज है। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम बेटा? किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ताकि अगर नहीं तो फिर मैं आगे प्रोसीड कर सकूं, ठीक है? खैर, आराम से देख लें, स्टेम एंड लीफ डायग्राम को एक मिनट के लिए देख लें। Can you hear me? अलीना? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बच्चा समझ आ गया? जी सर। ओके, आरोम, अली, हादी, हानिया, सलाम, खुशी, मुइज, यस सर, तैमूर, समझ आ गई है। तैयबा, जी सर। उमर, जारिया। जी सर। ओके, दैट इज गुड। चलें, स्टेम एंड लीफ डायग्राम हो गया हमारा। अभी इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, और लेकिन क्वेश्चंस से पहले जो है हम लोग जरा सारे नोट्स पूरे कर लेते हैं, ताकि हमें ये जो आइडिया है ना वो क्लियर हो जाए। चले जी, स्कैटर डायग्राम अभी हमारा है, स्कैटर डायग्राम। फिर हम पढ़ते हैं हिस्टोग्राम, और फिर हम पढ़ते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। तो स्टार्ट लेते हैं जी। अच्छा जी, ये हो गया जी स्टेम एंड लीफ डायग्राम। तो यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं, ऊपर लिख देता हूँ। ओके, स्टेम एंड लीफ डायग्राम, and according to the syllabus के मुताबिक this is only in IGCSE,
ओ लेवल्स वालों को आ जाना चाहिए, आपके पेपर में आएगा नहीं, ठीक है। हालांकि मैं बच्चों को देता होता हूँ क्वेश्चन स्टेम एंड लीफ डायग्राम के स्कूल में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आनी चाहिए। अच्छा जी, अब चलते हैं स्कैटर डायग्राम पे। स्कैटर इन डायग्राम्स, स्कैटर डायग्राम्स आर यूज्ड, they are used to see the relationship between two variables, between two variables, दो वेरिएबल्स हैं उसके दरमियान में आप रिलेशनशिप देखते हो। ओके, एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ 5 mark क्वेश्चन ऑन स्कैटर डायग्राम, और स्कैटर डायग्राम इज यूजुअली द पार्ट ऑफ नॉन कैलकुलेटर पेपर। सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 2, रामीन के नहीं है मेरे बच्चा, सिनेरियो नंबर 3। ओके बेटा, when all values they are floating in this direction, like let's suppose, so this is positive correlation, ये होता है बेटा पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। दैट व्हेन वैल्यू इंक्रीजेस दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। when all the values they are floating, let's say in this direction, so it is negative correlation। ये कौन सा रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव कोरिलेशन। And if you cannot tell about the positive or negative, like for example, few values are floating this way, few values are floating this way, so you can say that no correlation, no correlation, because you cannot tell that whether it is positive correlated or negative correlated, okay? It's a mixture. Understood? So whenever you cannot tell about looking at the values that, okay, the values are either not in positive direction, not in negative direction, so then there will be a no relationship. And Yamna, we studied this thingy in the gradient as well. Remember that gradient of such lines is positive. Agree or not? याद है? Yes, sir. Gradient of such lines is negative. Agree? और हमने पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट जो है वो 0 होता है, और वर्टिकल लाइंस का जो ग्रेडियंट होता है वो इनफिनिट होता है। एग्री? एग्री? Yes. तो वहां पर हम लोग नहीं बता सकते कि यार इनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। अंडरस्टूड? तो ये आगे हम लोग इसमें लगाएंगे, लाइन ऑफ बेस्ट फिट्स भी लगाएंगे। तो अब ये मैं क्वेश्चंस आगे कराता हूँ तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। स्कैटर डायग्राम भी हो गया नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्कैटर डायग्राम हो गया। अच्छा, फिर हमने कौन सा लिखा है इसके बाद? इसके बाद हम लिखा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम, और स्कैटर डायग्राम हो गया, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम, और फिर हिस्टोग्राम। चलिए जी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम बनाते हैं। एक पेज लेता हूँ जिसमें मुझे चाहिए डॉटेड पेज, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें जी, सब बहुत आसान है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम। बस इसको, इसमें जो मोस्ट कॉमन एरर्स हैं वो भी बता दूंगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम, आप में से कोई बच्चा जो है उस दिन ग्रुप में क्वेश्चन पूछ रहा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स के। एग्री? मैंने देखा कि एक क्वेश्चन ग्रुप में आया था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। आया था ना बेटा? आप में से कोई बच्चा पूछ रहा था ना उस दिन? कौन सा बच्चा पूछ रहा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला क्वेश्चन? सर मैं थी। हाँ, आखिर में दिखाता हूँ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है ना वो अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। पुराने सिलेबस में क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। सर ओके सर। जी बेटा, सर ये स्कैटर डायग्राम से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? भी अभी अभी कराता हूँ, थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सब्र करो, मैं अभी कराता हूँ, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में बेटा यहाँ पे हम लिखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन में गिवन होती है, या हम फाइंड करते हैं, और हमने कल सीखा था कि इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। एग्री? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और नीचे होता है आपका कोई भी, लेट सपोज मार्क्स हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं ज़रा जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल जो है एक ग्राफ आपके सामने बनाता हूँ, ठीक है। एक ग्राफ मैं आपके सामने बनाता हूँ, ज़रा जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। इट्स अ फ्री हैंड ग्राफ। तो ये ग्राफ फ्री हैंड होता है, फ्री हैंड ग्राफ्स, वैल्यूज आर प्लॉटेड, पार्ट स्टेप 2।
values are plotted. क्रॉस मार्क करना है आप लोगों ने, डॉट नहीं, क्योंकि सिलेबस में डॉट का जिक्र नहीं है, क्रॉस का जिक्र है, तो डॉट मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। values are plotted like a cross, and few important question asked is like, let's suppose this is 4, this is 8, after 4 boxes, uh, let me, after 3 boxes मैंने लिखा हुआ है, after 4 boxes 5, this is let's suppose 10, this is let's suppose 15, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड जरूर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जामिनर कैन आस्क यू मीडियन। तो बेटा मीडियन के लिए आपको पता है मीडियन इज 50% ऑफ सी एफ, हाफ होता है, विच इज n/2 भी आप लिख सकते हैं, आप इसको समेशन f/2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। आप टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड करके डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हो। यहाँ पे मेरे पास टोटल फ्रीक्वेंसी जो है 15 आ रही है, तो 15 का हाफ कितना होगा बेटा? 15 डिवाइडेड बाई 2 इज हाउ मच? 15 सेवन डिवाइडेड बाई 2 पॉइंट इज, हाँ जी, 7.5। इट इज 7.5। तो दिस इज 7.5 वैल्यू, 7.5 वैल्यू। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे 7.5 को मार्क करना है। अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं, जरा इस डाटा को मैं थोड़ा सा सेट करता हूँ ताकि मेरे पास ये 7.5 वैल्यू के चक्कर ही ना आए, ठीक है। जरा एक मिनट मुझे दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे पास आएंगे कि मैं 3 बॉक्सेस लेता हूँ, 5, 10, 15 एंड दैट इज 20, ठीक है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी अब मैंने कर दी है 20। तो बेटा 20 का हाफ क्या होगा? 10th वैल्यू क्या होगा बेटा? 10th वैल्यू। 10। Okay, so what you have to do, you have to hit the 10th value with the graph and go down and see what is the answer. So this line is your median, ये line आपकी median, ये आपका median show करेगा, ठीक है। This is median and this is your answer for median. Okay. And then examiner can ask you about the interquartile range. Interquartile range क्या है? Fourth one is interquartile range. Interquartile range कहते हैं बेटा upper quartile minus lower quartile. तो बेटा अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल होते क्या हैं, पहले जरा समझ डाल लें। तो अपर क्वार्टाइल होता है बेटा, अपर क्वार्टाइल इज हाउ मच परसेंट, नाम से ही जाहिर है ये अपर क्वार्टर होता है किसी भी डाटा का, इट्स 75% ऑफ सी एफ। ये सी एफ का 75% होता है। एंड 75% इन मैथ्स कैन बी रिटन एज, वी नो दैट 75% इज 75/100 विच इज 3/4। तो आप लिख सकते हो 3/4 ऑफ एन। तो हम लिख सकते हैं 3/4 ऑफ 20 इन दिस क्वेश्चन। तो ये आ रहा है बेटा हमारे पास 60/4 एंड इट इज 15th वैल्यू। नो सॉरी, इट इज 3 into 20 is 60 and 60 divided by 4 is 60 divided by 4 is 3/4। एक मिनट यार, ये नहीं है सर। जी बेटा, एक मिनट जरा मुझे, जरा यार एक मिनट जरा मुझे, आई हैव अ फ्लू, लेट मी गेट अ टिश्यू। कुछ भी नहीं है सर। ओके, सो इट इज 15th वैल्यू। ये 15th वैल्यू आई है आपके पास इस डाटा में 15th वैल्यू किधर है बेटा? ये आपके सामने ऊपर नजर आ रही है, ठीक है। सो ये 15th वैल्यू है। हिट द ग्राफ, आपने ग्राफ को हिट करना है। एंड आफ्टर हिटिंग द ग्राफ यू हैव टू जस्ट गो डाउन, आपने ये नीचे जाके देखना है कि व्हाट इज योर अपर क्वार्टाइल। आपका अपर क्वार्टाइल क्या है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू क्यू। ये आपका हो गया बेटा यू क्यू, अपर क्वार्टाइल, और ये अपर क्वार्टाइल का आंसर होगा, ठीक है। समझ आई? फिर अपर क्वार्टाइल आपने निकाल लिया, लेट सपोज। फिर आपने निकालना होगा लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। तो अब आप निकालेंगे लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल क्या होता है बेटा? इट इज 25% ऑफ सी एफ। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का 25% है, और हमें मैथ्स में पता है कि 25% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 1/4 होता है। तो 1/4 ऑफ एन लिख दो या एफ लिख दो। तो टोटल फ्रीक्वेंसी 60 है, 60 डिवाइडेड बाय 4 करें तो कितना आता है बेटा? 15। एक मिनट यार, थोड़ा सा सबक लगा। ओके, ये हमसे गलती हो गई, ये 1/4 ऑफ 20 है। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 थी, तो 20 डिवाइड बाय 4 इज 5।
तो फिफ्थ वैल्यू, तो फिफ्थ वैल्यू क्या होगी बेटा? फिफ्थ वैल्यू ऊपर ग्राफ में देखें हमने 5 को ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है, तो दिस इज योर 5, तो दिस इज योर आंसर फॉर द लोअर क्वार्टाइल। तो इंटर क्वार्टाइल क्या होगा बेटा? इंटर क्वार्टाइल होगा अपर क्वार्टाइल आंसर माइनस लोअर क्वार्टाइल आंसर। तो अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल के आंसर्स को आप माइनस करोगे, जो भी आंसर्स ग्राफ में होंगे, फॉर एग्जांपल एक्स है या फॉर एग्जांपल वाई है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस इज फॉर एग्जांपल वाई, दिस इज एक्स एंड दैट इज वाई। ठीक है, ये मैंने ग्राफ में लिख दिया है। ठीक है, अच्छा एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है रामीन कि व्हाट इज 80th परसेंटाइल? 80th परसेंटाइल, तो 80th परसेंटाइल नाम से ही जाहिर है इट इज 80% ऑफ योर फ्रीक्वेंसी। एग्री? यस और नो? 80th परसेंटाइल मींस 80%। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ 80% ऑफ सी एफ। तो 80% ऑफ सी एफ मीन्स 80% ऑफ 20। तो बेटा 80% ऑफ 20 क्या होगा? मेंटल मैथ से बताओ। 0 0 कटा, 8 2 जार 16th वैल्यू, इट इज व्हाट? 16th वैल्यू। तो आपने 16th वैल्यू को हिट करना होगा ग्राफ से। गो डाउन एंड सी योर आंसर्स। अंडरस्टूड एवरीबॉडी और नॉट? यस और नो? समझ आया बेटा सबको? जी सर। ये अभी क्वेश्चंस कराता हूँ तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। Once you are done with the cumulative frequency diagram, we have the last diagram in the stats. It is histogram. Histogram के बाद हमारी statistics जो है, statistics will end. This is the last diagram, and histogram is made for continuous slash discrete, लेकिन grouped data होता है, grouped data। तो हिस्टोग्राम की शक्ल कैसे होती है वो हम आपको बताते हैं, जरा थोड़ा सा वेट करें। वाई एक्सिस पे यू विल बी हैविंग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है। वाई वी यूज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वदान? बिकॉज और यहाँ पे कोई भी हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं, एजेस हो सकती हैं, ठीक है, मास हो सकता है किसी का भी, ठीक है, या टाइम हो सकता है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, हिस्टोग्राम को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला, और वो है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी विच इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल मल्टीप्लाई बाय के। अब यहाँ पे सिलेबस के अंदर मैं देख रहा हूँ तो के नहीं है अब। ठीक है, सिलेबस के अंदर मैं देख रहा हूँ तो के नहीं है, क्योंकि सिलेबस में उन्होंने के हटा दिया फॉर्मूले से। अब फॉर्मूले में के नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्वेश्चन जो हमारे पास मौजूद है उसमें के मौजूद है। तो वी विल बी फाइंडिंग के। अब के क्या है? के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्लास इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं? क्लास इंटरवल फाइंड करते हैं बेटा, क्लास इंटरवल फाइंड होता है अली लास्ट माइनस फर्स्ट से होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट से होता है। ये क्लास इंटरवल का फाइंड करने का तरीका है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड बच्चा? यस जी, सर। क्लियर है बेटा सबको? चलें क्वेश्चंस पे अभी। और यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज द हाइट ऑफ द पिलर। हाइट ऑफ द पिलर, ये हाइट ऑफ द पिलर होती है। तो यहाँ पे जरा प्लीज अंडरस्टैंड जरूर करें कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 0.5, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1.5। ओके, हिस्टोग्राम्स बेटा आपको डिफरेंट विड्थ के बनेंगे, ठीक है, और दे आर अटैच्ड एज वेल। सो वदान यू कैन सी वन थिंग दैट these two pillars have different lengths and different widths. Agree or not? यस सर। तो ये हिस्टोग्राम में और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये फर्क है। ठीक है, पर ये अंडरस्टूड? अटैच्ड होते हैं। अटैच्ड होते हैं और इनकी विड्थ डिफरेंट होती है। समझ आई? और इनकी विड्थ सेम भी हो सकती है, बाज़ क्वेश्चन में सेम भी होती है। क्लास इंटरवल जब सेम आएगा सबका तो सबकी विड्थ सेम आ रही होगी। सर ये अभी रिसेंट पेपर्स में कौन सा आया था, हिस्टोग्राम आया था कि नहीं आया था? आया था, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो जरा एक मिनट मुझे दे, मैं जरा क्वेश्चन पे चला जाऊँ। अच्छा जी, हम लोगों ने कल ये स्टेटिस्टिक्स स्टार्ट किया हुआ है, तो इसके हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस किए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी, एग्जामिनर क्वेश्चन नंबर 1 से अब स्टार्ट लेता हूँ स्टेटिस्टिकल डायग्राम में। द लेंथ ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट्स वर मेजर्ड, द रिजल्ट्स आर शोन इन द टेबल, frequency is given, frequency density we need to find. Okay, complete the table to show the frequency densities, and we have the formula for the frequency density, that fd is equals to frequency divided by class interval multiplied by k.
एज यू डू नॉट हैव एनी वैल्यू हियर, आपके पास कोई वैल्यू यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो k इज 1, आप k ले लोगे, k इज इक्वल टू 1, बिकॉज टेबल इज एम्प्टी, बिकॉज टेबल इज एम्प्टी, टेबल क्या है आपका, एम्प्टी है. And we know that Sime that in maths you have 1, 2, 3, 4 variables in this formula, and out of 3 are available. If 3 are available, then you can find out k. Agree? But in this question, you have frequency available, you have class interval available. You cannot find out FD if you do not have k. Understood or not? So we supposed it that the value of k is 1. So let's proceed with the class intervals first. तो बेटा यहाँ पे class interval निकालना है. Class interval. ओके, क्लास इंटरवल इज, मैंने आपको कहा था कि वो है, क्लास इंटरवल क्या है, सी आई क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट. तो बेटा फर्स्ट का क्या आ रहा है, 3 - 1 कितना आता है, 2. 4 - 3 इज 1. 5 - 4 इज 1. 7 - 2 इज 7 - 5 is 2, and 10 - 7 is 3. These are the class intervals. Okay. फर्स्ट की एफ डी कितनी आएगी बेटा, फर्स्ट की एफ डी आएगी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल, 8/2 is 4. Okay. Then FD for the second one is frequency divided by class interval, 5/1 is 5, 6/1 is 6, and 12/2 is 6, and 12/3 is 4. तो हमारे पास ये टेबल हो गया कंप्लीट 2 मार्क्स के लिए. कंप्लीट द टेबल टू शो द फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज, एंड यू हैव टू यूज द फॉर्मूला of the histogram because it was written in the question. If you have the histogram word, तो आपने फिर भी सेम फॉर्मूला लगाना है. One leaf is chosen at random. Find an estimate of the probability that this leaf is more than 6 centimeter long. बेटा probability क्या होती है, साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ. पार्ट डिवाइड बाय टोटल होता है, पार्ट डिवाइड बाय टोटल होता है. तो देखें जी, लीव्स मोर देन 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो मोर देन 6 सेंटीमीटर लॉन्ग आपके पास कितने बनते हैं, आपने प्रोबेबिलिटी लेनी है. क्या लेनी है बेटा, प्रोबेबिलिटी लेनी है. तो प्रोबेबिलिटी में इट कैन बी एन एस्टिमेट, बिकॉज दिस इज एन एस्टिमेट, ठीक है, एंड योर आंसर कैन बी लाइक दिस. ओके, सो मोर देन 6 सेंटीमीटर्स. तो यहाँ पे जरा सब देखें बेटा, यहाँ पे 4 to 5 इज क्लियर, बट दिस इज 5 to 7. एग्री और नॉट? एंड 5 to 7 देयर आर 12, फॉर एग्जाम्पल क्या नाम है, यहाँ पे लीव्स हैं. तो 5 to 7 12 लीव्स हैं, तो 5 to 7 बेटा 5 से बड़े हैं लेकिन 7 तक हैं. तो हम लोग क्या करते हैं कि इनको हाफ कर देते हैं, ठीक है. लेट्स टेक हाफ हियर. तो लेट्स टेक 6 एंड दिस इज 12. तो 6 + 12 कितना आता है बेटा, 18 आता है. और 18 आउट ऑफ टोटल, टोटल कितने हैं जरा काउंट करो. 8 + 5 इज 13, 13 + 6 इज 19, 19 + 12 इज हाउ मच, 31, एंड 31 + 12 इज 43. एम आई राइट बेटा? क्या ये 43 आ रहे हैं टोटल? क्या मैंने गलत तो नहीं कर दिया? अगर ये समझ नहीं आ रही तो इसको हम बाद में भी कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर. तो ये मिटा देता हूँ. चले जी. ओके, अब देखिए जी, द डायग्राम इज ड्रॉन and you are requested to find few values in this diagram. The time taken by each of 120 runners to react to the starting gun react to the starting gun were recorded, and the CF diagram summarizes the result. Find the upper quartile. Beta upper quartile कितना परसेंट था? How much percent was that upper quartile? 75%. 75%. वेरी गुड. 75%, और 75% को हम 3/4 भी लिखते थे. सो इट इज 3/4 ऑफ 120. तो 4 और 120 को काट लो. 4 1s are 4 and 4 3s are, तो 3 × 30 is 90th value. 90th value. So Vadan, 90th value would be between 80 and 100. Agree? तो 90th value कुछ यहाँ पे होगा. जस्ट हिट द ग्राफ. आप ग्राफ को हिट करो. गो डाउन एंड सी योर आंसर. आप नीचे जाके अपना आंसर जो है वो देखोगे, ठीक है. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे होगा 1.5. तो ये है 1.1. दिस इज 1.2. दिस इज 1.3. एंड दिस इज आफ्टर दैट बॉक्स, दिस इज 1.35. सो 1.35 इज योर अपर क्वार्टाइल. तो ये 1.35 इज योर अपर क्वार्टाइल. ट्राई टू बी एग्जैक्ट. ओके, एग्जैक्ट रहने की कोशिश करें. फाइंड अप 40th परसेंटाइल. व्हाट इज 40th परसेंटाइल अलीना? 40th परसेंटाइल का क्या मतलब है? व्हाट इज 40th परसेंटाइल अलीना? अरसलान, व्हाट इज 40th परसेंटाइल बेटा? कम ऑन, माइक ऑन करो यार. हादी, व्हाट इज 40th परसेंटाइल बेटा? तैयबा,
क्या हिसाब है, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आ रही है सर, आ रही है। जी, 40th परसेंटाइल किसको कहते हैं बेटा, नाम से जाहिर है? 48% of the stat of 40 by 100 into 120. इंटू 120, तो 0 0 कटा, 0 0 कटा, 4 into 12 आता है बेटा 48th वैल्यू, 48 वैल्यू। अब ये दिस इज नॉट द आंसर, आपने 48 वैल्यू ढूंढनी है, तो ये 40 और 60 के दरमियान में होता है 50, तो एक बॉक्स नीचे होगा 48। सो दिस इज योर 1.1, तो 1.1 इज द आंसर फॉर द 48 value. Find the number of students who took less than 1.5 seconds. So less than 1.5 seconds. So it is on x axis. x axis पे नजर आ रहा है आपको, तो 1.5 वाले बच्चे कितने हैं बेटा आपके पास? These are 1.5। ठीक है, सो जरा हिट करते हैं ग्राफ के साथ। ओके, सो दिस इज हाउ मच, ये है बेटा 110। सो 102 एंड दिस इज 104, ये 104, 104 हो गया वैल्यू। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक लेस देन, तो 104 इज द आंसर, कि लेस देन, तो 104 हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो 103 ले लेंगे फिर, ठीक है, लेस देन है तो 1.5 से लेस होना चाहिए, तो वहां पे 104 आया तो वी विल टेक 103, because who took less than 1.5 seconds, so less than 1.5 seconds are these persons and greater than 1.5 are the above ones. Understood or not? Yes or no? जी सर। Okay, let's proceed. Question number 3, histogram. See, you have distance x centimeters and frequencies. In an experiment with a group of snails, the distance moved in 1 minute by each snail was recorded. And this is distance in front of you. ये यहाँ पे distance है। ये PDF बनते हुए जरा थोड़ा सा इसका black and white खराब हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। This is distance and this is your frequency. Okay. Now, Simon, you can see one thing, that frequency densities are available below. Can you see that there are few pillars are drawn? 3 to 4 pillar Yep. is drawn. So we are given with this frequency density. We are given with 4 to 5 as well. For 5 to 7 be given hai. Agree? 3 to 4 is how much, beta? 3 to 4 is the mid of 8 and 10, which is 9. Agree? And 4 जी to सर। 5, the FD is 12. And this one is 8. So these three are given. So Simon, we know that we have formula FD is equals to frequency divided by class interval multiplied by K. Let's investigate K first. Investigate K. So you can see that you have these three values available in this first three pillars. Second, third and fourth pillar के अंदर आपके पास कुछ ना कुछ मौजूद है। So what we can do here is time that we can find out the class intervals for all of them. हम हर एक के लिए class interval find कर लेते हैं। Class interval for the first one is 3 minus 2 is 1, 4 minus 3 is also 1, 5 minus 4 is also 1, 7 minus 5 is 2, and 9 minus 7 is also 2. So okay, I can use this pillar. मैं यहाँ पे इस पिलर को अली इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे तीनों चीजें मौजूद हैं। एफ डी इज बेटा 9, frequency is 9, and class interval is 1. So 9 by 1 is 9. So 9 is equals to 9k, means k is equals to 1. So now we are going to ignore this for value of k in the formula for the rest of the question, Yamna. So first of all, we are going to use the histogram to find the value of p. Okay, so value of p is in the fourth column. So fd is equals to frequency divided by class interval multiplied by k. So as k is 1, so we will remove k now. Fd for this third one is 8, frequency is p, and the class interval is 2. So p is equals to 8 times 2, so p is equals to 16. So value of p जो है बेटा वो 16 आ जाएगी 1 मार्क के लिए। अब एग्जामिनर कहता है complete the histogram. So you are going to find the FDs for the first and the last pillar only. तो बेटा यहाँ पे FD फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे 6 डिवाइड बाय 1 जो है वो 6 आएगा, और यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 2 जो है वो आएगा 2। तो 2 to 3 is 6, सो बेटा 2 to 3 is 6, तो 2 to 3 ये है बेटा आपके पास, 2 to 3 is 6। तो आपने यहाँ पे 6 की तरह लगा के और यहाँ पे अपने पिलर्स के अंदर लाइंस लगा देनी है, ठीक है। और लास्ट पिलर है बेटा 7 to 9 is also 2, तो 7 to 9 वो भी 2 आ रहा है, तो 7 to 9 is 2, तो ये आ गया बेटा 7 to 9 का पिलर। वदान समझ आ रही है बेटा, 7 to 9 is 2, तो ये हो गया बेटा आपका 2 मार्क्स के लिए। अंडरस्टूड? जी सर। ओके, प्रोसीडिंग। ये उसका क्वेश्चन हम बाद में करते हैं। सर बस क्लास खत्म ताकि हो गई। बेटा खैर है ना,
कंटिन्यू अच्छा करते हैं। ठीक, खैर कुछ भी नहीं होता। अच्छा, question number 4 says that the table shows the ages of the guest at a party and the frequency and age is given। तो यहाँ पे age है और ये है f। The histogram represents some of this information। Okay, histogram का बेटा फॉर्मूला है FD is equals to frequency divided by class interval multiply by k। ओके, तो हिस्टोग्राम के अंदर हमारे पास कुछ है, तो यहाँ पे किसी का हिस्टोग्राम की कोई FD इज नॉट अवेलेबल। एग्री और नॉट, यस और नो? क्या आपके पास FD अवेलेबल है? नो। सो जी क्लास सर। इंटरवल अवेलेबल है, क्लास इंटरवल। अब जरा क्लास इंटरवल देख लें, क्या किया मैंने, एक मिनट। ओके, इट्स क्लास इंटरवल। बेटा क्लास इंटरवल फाइंड करें। 10 - 20 - 10 इज, बार बार 10। लिखता हूँ, क्लास इंटरवल जो है लास्ट माइनस फर्स्ट होता है, ठीक है। तो 20 - 10 इज 10, 40 - 20 इज 20, 20। 45 - 40 is 5, 50 - 5। 45 is 5, 65 - 50 is 15। So let's find out क्या नाम है आपका FD। सो अब हम लोग FD फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम लोग इसके जरिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ एंड द एजेस एट अ पार्टी। अब हमें P को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बेटा फ्रीक्वेंसी आपके पास इतनी गिवन है, क्लास इंटरवल 10 है आपके पास, और आपके पास P की वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे हमें दो तीन चीज़ों को अंडरस्टैंड जरूर करना है कि हम लोग इसको किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे ताकि हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे पास ठीक आ जाए, ताकि क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है। यूज द हिस्टोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। तो लेट्स ट्राई। हिस्टोग्राम का फॉर्मूला लेते हैं, FD इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। तो बेटा FD हमने निकालनी है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है हम लोगों ने, और FD भी हमारे पास नहीं है यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आई गेस कि इसका कोई डायग्राम मिसिंग है यहाँ पे। एग्री और नॉट? हाँ ना सर। आई गेस देयर इज अ डायग्राम मिसिंग इन दिस PDF। ये क्वेश्चन मैं बाद में जरा चेक करूंगा, ठीक है। आई विल चेक दिस क्वेश्चन लेटर, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसका डायग्राम मिसिंग है, क्योंकि किसी की FD भी नहीं गिवन हमें क्वेश्चन में। तो हम P कैसे निकालें इसमें से, और टोटल फ्रीक्वेंसी भी नहीं बताई इन्होंने हमें, तो हम लोग यहाँ से इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। चलें आगे चलते। ओ ये है यार, मेरे ख्याल से ये नीचे बना मैंने 10। यस, नीचे बना हुआ है बेटा, पार्ट B में। ये अच्छा। ऊपर है, ये नीचे है। हाँ, मैंने पार्ट B देखा ही नहीं नीचे, वो एक्चुअली नेक्स्ट पेज पे था। चलें जी। FD जो है बेटा फर्स्ट 10 - 20 की FD कितनी है बेटा, जरा यहाँ पे देख लो। 10 - 20 की FD है आपके पास 1 और 1.5 आ रही है। यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट 1 पॉइंट, ये वन आ रहा पॉइंट है, टू फाइव ये आ रहा है 1, और ये आ रहा है बेटा आपके पास ये वाला पॉइंट है, दिस इज 1.6। ये वाला है सर मैं नहीं एंड समझा, ये 1.5 पहले क्यों लिखा है? बेटा ये 1.5 इसलिए लिखा है क्योंकि 1 और 2 के दरमियान में ये 1.5 आएगा ना ओ FD। हाँ ठीक है ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पता नहीं। मार्क कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सही है ऊपर सही है। ऊपर टेबल के अंदर जो है वी आर गोइंग टू राइट द वैल्यूज। 10 - 20 इज 1.5। ओके, फिर है सेकंड पिलर है 1, थर्ड पिलर है 1.6, फोर्थ पिलर इज 2.4। ओके, चलें अब यहाँ पे हम लोग K को फाइंड आउट कर सकते हैं पहले। तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं K को, बिकॉज फॉर द सेकंड पिलर वी हैव एवरीथिंग अवेलेबल। तो कॉलम सेकंड कॉलम द सेकंड कॉलम हैज FD 1, frequency 20, class interval 20 multiplied by K। So 1 is equals to 1K. So K is 1, so it is ignored now in the formula. So now FD for the first pillar. FD for the first pillar is 1.5. Frequency is P and the class interval is 10. So 10 multiplied by the 1.5 is how much? 1.5 times 10 is how much? 15। It's 15. 1 mark. Look at Q now. अब Q देख लें। Q है, Q की FD है बेटा 2.4, 2.4। फ्रीक्वेंसी इज Q एंड द क्लास इंटरवल इज 5। तो ये हो जाएगा बेटा Q इज इक्वल टू 2.4 टाइम्स 5। तो 2.4 को हम लिख सकते हैं 25/10, 24/10 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, तो 5 1s are 5, 5 2s are 12, 24 डिवाइड बाई 2 इज 12। 1 मार्क। अब लास्ट में कंप्लीट कर लेते हैं हिस्टोग्राम। तो 40 to 50 इज ड्रॉन, जस्ट फाइंड आउट द लास्ट वन। सो इसकी फ्रीक्वेंसी है बेटा 18 एंड द क्लास इंटरवल इज 15।
सो 18 डिवाइड बाय 15 कितना आएगा बेटा? कटिंग कर लेते हैं जरा। 6/5 आता है, एग्री और नॉट? 6/5 को साइन डेसिमल में कन्वर्ट करने के 1.2. लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो ये आ जाएगा 12/10। सो द आंसर वुड बी 1.2। सो 50 to 65 इज 1.2। सो 50 to 65 यहाँ पर अच्छा, ये ना होगा आखिर तक ले जाओ। तो 1.2 ठीक है बेटा, सर. 1 से 2 बॉक्सेस ऊपर आएगा, तो ये हो गया 65। तो यहाँ पे आपने बना दिया हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे हो गया हमारे यहाँ तक के क्वेश्चंस। बेटा बाकी सारे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से बॉयज चले गए हैं, तो अभी फिर इंशाल्लाह बाकी हम लोग कल करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह सर. चलें, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर जी बेटा सुन रहा हूँ। सर ये जो आपने